Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. I'm Rotak has started the application for its IPM program. In this video, let's just have a look at the admission brochure and also fill the form. So without any further ado, let's begin. So first of all, going through the admission brochure, some things that you need to keep in mind. The eligibility criteria is such, you need to have minimum 60% in both 10th as well as 12th. So in Indore, you did not have any criteria for your 10th and 12th marks, but in Rohtak you do. And you also have a relaxation of 5% if in case you come from SC, ST or DAP/PWD category. If in case you are born on or after June 30, 2006, you are eligible. Otherwise, you're not. So you need to be maximum of 20 years as of June 30, 2026. That's 20 years, 0 months, 0 days. And you also have a 5-year age relaxation for SC and ST category. Now, in this particular form, usually when you are filling any form, you need to take the aggregate percentage of your 10th and 12th basis of all the subjects that appear in your mark sheet. But in the case of IIM Rohtak, they've clarified it has to be the best of 5 subjects irrespective of board circulation. तो अगर आपने 6 subjects attempt करे हैं, appear करे हैं in your class 12, you only need to take any 5, the best ones, when you are calculating your 10th and 12th score both. So that is something that you need to keep in mind. उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है. इट विल स्टे ओपन टिल April 6, 2026. So you have plenty of time, but again, don't rush it or like push it to the last date. It is ideal कि आप अभी से फॉर्म भरना चालू कर दें. You ask your parents or your siblings or your friends to also verify, cross-verify all the information that you've filled. But you're 100% sure that everything that you've filled is accurate is when you proceed with your application payment. In terms of the examination, it is to be conducted on May 10th, 2026, and the timing would be 9 a.m. to 11 a.m. So a 2-hour examination. In those 2 hours, you are going to solve the questions from 3 sections. One is quantitative ability, 40 questions, followed by logical reasoning, 40 questions, followed by verbal ability, 40 questions. There is no sectional timer. You can, go back and forth between these 3 sections. So it's total 120 questions in 120 minutes, each having a positive mark of 4. And for every wrong answer, you get a -1. So that is there. Now, if in case you also apply for IPL, which is a law integrated program in law, which is also available in IIM Rohtak, you will also be giving a 4th section, which is going to be legal reasoning, allowing you to do 20 questions in 20 minutes. This is a separate section with a sectional timer. So the first 120 minutes is separate, and then this 20 minutes is separate for 20 questions. But I don't recommend going for this program. I'll give you the reasons later when you're filling the form. In terms of the selection criteria, you're going to have 55% weightage given to your aptitude test, which is IPMAT Rohtak. Then you have interview, which has 15% weightage. Then you have class 10th, which is 10% weightage. And then class 12, which is 20% weightage. So IIM Rohtak as a college is a place where, they do give priority and importance to your 10th and 12th scores. So you need to make sure that, वो अगर आपका 12th अभी तक नहीं हुआ है, तो you're giving your best over there. But at the same time, अगर आपने already 12th दे दिया है and 10th anyways उन्होंने दे दिया है, so you don't have to worry about that. What's done is done. But what you need to make sure is कि जो चीज़ आप improve कर सकते हो आपके हाथ में है, वो आप सही से करते हुए चले. So that is there in terms of your 10th and 12th scores. In terms of the interview, they haven't mentioned whether it is going to be online or offline. In the form, they do not ask for interview city preference. So most likely, either ये लोग online करेंगे या फिर वो आपको IIM Rohtak में ही बुला लेंगे to conduct your interviews, which they have done 1 year. So, either of the two can happen, or they might ask you for interview city preference later when you, have your shortlist out. So anything of these 3 can happen. उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. द टोटल सीट रिमेन सेम. सीट मैट्रिक्स इज 198 सीट्स इन टोटल. इंपॉर्टेंट डेट्स में आपके फॉर्म ओपन है टिल April 6. एग्जाम होगा May 10th में. उसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्ट आएगी लास्ट वीक ऑफ May में, और आपका इंटरव्यू होगा 1st और 2nd वीक ऑफ जून में, विच गिव्स यू अबाउट 7 to 14 days ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज. उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट जो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 2nd वीक ऑफ जुलाई से आना चालू हो जाएगा. दे विल बी वेट लिस्ट मूवमेंट हैपनिंग, और वो सब राउंड अप होके इन द 3rd वीक ऑफ August इज व्हेन योर कॉलेज विल स्टार्ट. So that is how, that is all the information that is given in the admission brochure. Now let's move to the application. Before that, you can also look at the fee brochure, fee structure, which is given as follows. The fee is roughly 21.5 lakhs for the first 3 years. In that, I'm also including a payment of roughly 50,000 per annum for your mess also. Apart from this, you will also have the fee of PGP, the 4th and 5th year, the basis of whatever PGP fee is applicable at that point in time. So roughly आप उसका another 20 lakhs मान के चल सकते हैं. तो roughly 41.5, 41, 42 lakhs is what
the overall cost of the IPM program at IIM Rohtak is going to be like loans are available to the tune of 40 lakhs maximum without collateral. But we personally do not recommend you take a loan of 40 lakh for a college like IIM Rohtak, IIM Ranchi. I'd be, recommending somebody even if they are taking a loan. तो I think 20 lakhs is a sweet spot जहाँ पर आपका ज़्यादा financial burden भी नहीं आता है to pay back the loan after your placement is done. और ऐसा भी नहीं होता कि पूरा स्ट्रेन आपके फैमिली पे आ रहा है. तो आई थिंक 20 lakhs इज अ स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द लोन. बाकी आप फी स्ट्रक्चर को खुद से देख सकते हैं अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स अवेलेबल ओवर हियर. बट नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्म इटसेल्फ. पहले आप फॉर्म पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप आओगे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालोगे. You will have to fill in your name. It should be as per your class 10 mark sheet. उसके बेसिस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डालिएगा. Date of birth earliest it can be is 30 June 2006. If in case you're from ST category, तो इस केस में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो गया. 2006 की जगह 2001 हो सकता है. Then you enter your category. अगर आप कोई और कैटेगरी डाल रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. आपका ईमेल एड्रेस समथिंग दैट यू चेक रेगुलरली सो दैट अगर कॉलेज कोई कम्युनिकेशन करता है तो आपके पास आ जाए. योर नेशनैलिटी, योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, योर मोबाइल नंबर, अगेन समथिंग जो आप अच्छे से चेक करते हो. ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ आपसे OTP मांगेगा. आप OTP वैलिडेट करोगे, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन करोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे तो आपकी ID जनरेट हो जाएगी. आपको मेल और SMS में आपकी यूजर ID और पासवर्ड आ जाएगा. उसके बाद यू नीड टू प्रोसीड टू द एप्लीकेशन. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. एप्लीकेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन नंबर पहले से अलॉट हो गया है. दैट इज योर यूजर ID. आपका कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले ही डाल दिया है. देन यू एंटर योर फादर्स नेम एंड योर मदर्स नेम. नाउ दिस इज समथिंग जो बेसिकली आप 10th की मार्कशीट से डालें अच्छा रहेगा. एंड सारे डॉक्यूमेंट्स में आइडियली सेम होना चाहिए. 10th की मार्कशीट एज वेल एज आधार. योर जेंडर, योर मैरिटल स्टेटस एज वेल. सो अगर आप मैरिड हैं आप यहाँ मैरिड डालेंगे. अगर आप मैरिड नहीं है तो आप नहीं डालेंगे. योर कैटेगरी एंड योर नेशनैलिटी. उसके बाद मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें जो ब्लैक्ड आउट हैं ये आप ऑलरेडी पहले डाल चुके हो. बट आप ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल ID, ईमेल ID में अपने पेरेंट्स की डाल सकते हैं. इफ़ यू आर फिजिकली हैंडीकैप्ड यू एंटर इट ओवर हियर. एंड उसके बाद आप आते हो एड्रेस पे. आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है. अगर सेम है तो आप दोनों में सेम कर सकते हैं. उसमें येस क्लिक कर दीजिए. अगर सेम नहीं है तो नो करके चलिए. परमानेंट एड्रेस इज यूजुअली द वन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है. और प्रेजेंट इज वेयर यू आर करंटली लिविंग. सो दैट इज देयर. बट अगर सेम भी डाल दिया तो चलता है. परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट अगर सेम भी है तो नो इश्यूज एज सच. नाउ इसके बाद ये पूछता है वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ ऑल्सो. अब यहाँ बहुत बच्चे येस कर देते हैं बिकॉज IPL में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं. आपके सेम फॉर्म फी जो भी आ रही है आपकी रफली 4900 के अराउंड आपकी फॉर्म फी आनी चाहिए. तो उतने के अंदर ही आप सिर्फ IPM के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या IPM प्लस IPL के लिए कर सकते हो. सो आवर इंडियन माइंड सेज कि जब सेम पैसा लग रहा है तो मैं क्यों IPL के लिए अप्लाई ना करूं. बट आई वुड रेकमेंड यू टू नॉट डू दैट अनलेस एंड अनटिल आपने क्लैट भी दिया है. अगर आपने क्लैट दिया है, यू आर कंसिडरिंग लॉ एज अ करियर ऑप्शन ऑलरेडी, देन इट इज अ गुड थिंग टू अप्लाई फॉर IPL एज अ प्रोग्राम. Other than that, I don't see any point in you primarily an IPM aspirant to also apply for IPL. Reason being होगा क्या कि आप IPL शायद जाने के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं हो बट आप अभी भर दोगे. उसके बाद रिजल्ट आएगा. फॉर अ लॉट ऑफ यू ऐसा होएगा कि IPM में किसी कॉलेज से कॉल नहीं आया बट IPL में रोहतक से आ गया. IPL में रोहतक से सीट मिल गई है, एडमिशन हो गया. तो आप फिर ऐसा लगेगा आपको कि यार किसी और IIM में एडमिशन नहीं हुआ तो IIM रोहतक ही चले जाते हैं. क्या हुआ, लॉ प्रोग्राम है तो एट द एंड ऑफ द डे IIM रोहतक है, अच्छा IIM है. But in that case, a lot of you are going to be stuck because it's a 5-year program. It's an integrated program, but you don't have any exit option. 5 साल के बाद आपको MBA डिग्री नहीं मिलती. You get 2 degrees. One is going to be your BBA, the other is going to be LLB. तो आप अंडरग्रेड ही करोगे पूरे 5 साल. आपके पास बीच में कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं होगा. पूरा 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा. कोर्स काफी महंगा भी है, इतना प्रूवन भी नहीं है. प्लस IIM रोहतक एज अ कॉलेज इज primarily known for its management courses and not for law courses. So a lot of things are not going in favor of this particular decision, which is why I recommend people to not apply at all. अगर आपको लॉ एज अ करियर में आपका अभी तक कोई प्लान नहीं था तो, बिकॉज फिर बाद में वो जाके सेकंड डाउट आएंगे, सेकंड थॉट्स आएंगी और फिर बाद में शायद आप ये डिसीजन ले लो जो बाद में मे बी आप रिग्रेट करो बिकॉज लॉ वॉज समथिंग विच यू डिड नॉट रियली वांट टू गो बट आप जा रहे हो. वाई? बिकॉज आपका एडमिशन सिर्फ यहाँ हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. बाकी तो आपके ऊपर डिसीजन है, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ऑफ कोर्स अगर आपने क्लैट दिया है, बाकी लॉ एंट्रेंसेस देख रहे हो, देन इट मेक्स सेंस कि ठीक है लॉ में एक बैकअप है बट लॉ नहीं देख रहे हो तो प्लीज मार्क इट एज नो, यू विल थैंक मी लेटर. उसके बाद आपने करना है सेव एंड नेक्स्ट. उसके बाद आ जाएगी आपकी एकेडमिक डिटेल्स. अगेन आपको यहाँ 10th 12th में आपका बेस्ट 5 का परसेंटेज डालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स रेगुलेशन. CGPA आया है तो उसका अप्रोप्रिएट कन्वर्जन का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए.
आप यहाँ पर मेक श्योर करें, अगर 60.04 है तो 60.04 डल रहा है, 60.4 नहीं डल रहा है, बिकॉज ये चीज़ें बाकी दिक्कत देती हैं। रोहतक इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर 10th एंड 12th मार्क्स, बिकॉज उनके एडमिशन क्राइटेरिया में इसका वेटेज भी है, तो दे डोंट वांट यू टू मेक अ मिस्टेक ऑफ इवन 0.01%। कम डालोगे एक बार चलेगा, बट ज़्यादा डालोगे तो नहीं चलेगा। बट वन गुड थिंग दैट दे हैव डन इज कि यहाँ आप अपना 10th का और 12th का सारा इन्फॉर्मेशन जब डालते हो, योर स्कोर, योर 10th का बोर्ड, योर स्कूल नेम एंड योर ईयर ऑफ कंप्लीशन, जब आप ये सारी चीज़ें डाल देते हो, उसके बाद वो आपसे नीचे ये भी पूछते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर करा है, उसमें आपके मार्क्स कितने थे आउट ऑफ कितना। तो एक नीचे यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाता है आपका परसेंटेज। मेक श्योर जो यहाँ नीचे कैलकुलेट करके आ रहा है और जो आप ऊपर डाल रहे हो वो सेम है, इसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। सो दैट वे यू आर ऑल्सो श्योर कि मैंने अपने 5 सही सब्जेक्ट डाले हैं और जो मैं अपना परसेंटेज कोट कर रहा हूँ वो सही है। सो दैट इज समथिंग दैट। एंड 12th में भी सेम चीज़ होएगा। अगर आपने 12th नहीं दिया है तो आप यहाँ लिख दोगे कि अभी 12th में करंटली पेयरिंग हो तो इसलिए मैंने नो डाला है, तो अभी 12th के मार्क्स आए नहीं है, तो अभी आप वो डाल सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आएगा वो आपसे तब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अदरवाइज येस करके सेम इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दे रखी है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीज़ें डाल दोगे तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आ जाएगा सिटी प्रेफरेंस डिटेल्स। अगेन अनलाइक आई एम इंदौर, आपसे यहाँ कोई इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस नहीं मांगी है, सिर्फ योर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस मांगी है। मोस्टली लोगों को प्रेफर्ड सिटी 1, 2 में से कोई मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर 3 डाल दी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे ऊपर ये जो अभी एरर आ रहा है दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से टैब ओपन कर रखा था, तो शायद आई एम लॉग्ड आउट। अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट डालनी है। अगर आप कोई कैटेगरी चूज करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपसे ये कहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालिए, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में सेम फोटो की आपके पास प्रिंटेड कॉपीज होनी चाहिए, जो आपको एंट्रेंस के टाइम दिखानी पड़ेंगी, इंटरव्यू के टाइम दिखानी पड़ेगी। फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, प्रॉपर लाइट ग्लेयर वगैरह ना आ रहा हो आपके चश्मे पे। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड साइज और फॉर्मेट का आप देख लीजिएगा, साइज ज़्यादा जा रहा है, फॉर्मेट अलग है, तो ऑनलाइन कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं टू हेल्प यू विद दैट। फिर सिग्नेचर में भी सेम चीज़, वाइट प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। मेक श्योर कि विजिबल हो, लेजिबल हो, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द इमेज को कवर कर रहा हो। ऐसा नहीं कि इतना सा आपका सिग्नेचर और आपने इतनी बड़ी इमेज खींची है जिसके अंदर वो छोटा सा दिख रहा है। थोड़ा विजिबल होना चाहिए, अच्छे से लेना और साइज वगैरह का ध्यान रखना। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपने यहाँ पर डाल देनी है। मोस्ट लाइकली आई फील है कि अगर आपने 12th भी दे रखा होगा तो यहाँ से आपको 12th की मार्कशीट डालने को भी बोलेगा। अदरवाइज अभी तो मैंने यहाँ ये कर रखा है कि 12th में मैं अपेयरिंग हूँ तो मुझसे नहीं मांग रहा है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन्होंने बोला है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट डालनी है। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट क्या होती है? आपने मार्कशीट का एक प्रिंट आउट निकाला, एक कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद उस प्रिंट आउट में लिखना सेल्फ अटेस्टेड बीच में कहीं, और उसके नीचे आप साइन कर देना। दैट इज व्हाट सेल्फ अटेस्टेड इज गोइंग टू बी लाइक। अगर मेरे वीडियो बनाने से पहले आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो और आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा है तो इतना दिक्कत नहीं होता है। एक कॉलेज को मेल डाल लीजिएगा एट मैक्स, बट इस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। बट अगर नहीं करा है, फॉर्म अभी भर रहे हो, तो डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू नॉट फॉलो देयर रूल्स। सो इन दैट केस यू टेक अ प्रिंट आउट, यू डू सेल्फ अटेस्टेशन एंड उसके बाद आप यहाँ अपलोड कर देते हो। उसके बाद आपकी जो फी आती है दैट इज 4937। पेमेंट करने से पहले आई वुड रेकमेंड कि यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह डाल के प्रीव्यू पे जाइए, एक बार फॉर्म को प्रीव्यू करिए, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से आ रही है नहीं आ रही है, अपने दोस्त या किसी से पूछ लीजिए जो भी चीज़ें यहाँ डली हैं वो ठीक है या नहीं है। मेरे यहाँ पर फोटो वगैरह नहीं दिख रहा है क्योंकि टैब काफ़ी टाइम से ओपन था, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। आप लोगों को दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। वंस यू आर मेड श्योर कि यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन डली है सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, 10th 12th की परसेंटेज ठीक से चूज करी है, IPL में एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो वाला येस नो आपने ढंग से टिक करा है, इज व्हेन यू मेक द पेमेंट करोगे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम आपका होगा 10th of May 9 to 11 AM, and that is how things are going to be like. If in case you're preparing for this examination, we are going to be coming up with crash course. You can head over to our website to book a free counseling session to get to know more about the same. That being said, all the best for your board examinations. If in case you have any questions about this form, you can drop it down in the comment section. I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye-bye. Thank you.